Hello everyone, welcome back to our channel. मैं काकू And I'm Sanju. and we are the IC Travelers. So we are up and over the Jaipur series. Hope you all enjoyed all the videos, and if you have not watched it already, you can check it in our playlist. You will get that. You will get all the minor details of the day, each day that we visited. But I would like to say that Jaipur is a very beautiful city. Even we didn't had this much idea that we'll enjoy so much. Like, this is one of the best cities that we have visited maybe till now, and it's very beautiful. You must keep your plans for this Jaipur city, and even we are thinking that we'll have a Rajasthan tour after this. That was the impact of this city. So yeah. So हम लोगों ने ये टॉप 16 का एक लिस्ट बनाया है. जैसे आप लोगों ने पहले अगर हम लोगों की वीडियोस को फॉलो किया है, आप लोगों को पता होगा हम लोग डे वाइज टॉप 15 सिलेक्ट नहीं करते. हम लोग ऐसे पिक करते जो चीजें हम लोगों को पसंद आए ये कंप्लीट टूर के दौरान. ऐसे हम लोगों ने टॉप 16 टू टॉप 1 एक हम लोगों ने लिस्ट रेडी की है. तो आप लोगों को भी पता चलेगा कौन सा जगह कैसा कैसा लगा हम लोगों को. और एक जगह बोनस है आप लोगों के लिए जिसके बारे में हम लोग वीडियो के एंड में बात करेंगे. That is also an important place as a tourist place, you can say. We'll talk about that in the end. हाँ, तो अभी बात नहीं करते, लास्ट में बताएंगे वो चीज. तो फिर ज्यादा देर नहीं करके स्टार्ट करते हम लोग की टॉप 16 की जर्नी. So at number 16 we have नाहरगढ़ फोर्ट. नाहरगढ़ फोर्ट एंट्री से पहले ही आपको मिलेगा एक बावड़ी जिसे स्टेप वेल भी बोला जाता है. उस टाइम पे ये स्टेप वेल काफ़ी इम्पोर्टेंट था और ये काफ़ी बड़ा और खूबसूरत भी है. उसके बाद हम लोगों को वहाँ से एरियल व्यू देखने को मिला आमेर सिटी का, जो कि जयपुर से पहले राजस्थान का कैपिटल हुआ करता था. उसके बाद हम लोग गए नाहरगढ़ फोर्ट की ओर, जहाँ पे कुछ म्यूजियम्स भी था जिस पे आप एंट्री करने के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा. फिर वहाँ से हम लोग गए माधवेंद्र पैलेस, जो कि नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर ही था. उस पैलेस को हॉन्टेड पैलेस भी बोला जाता है, और क्यों उस पैलेस को हॉन्टेड बोला जाता है वो सब कुछ डिटेल्स आपको मिलेगा फुल वीडियो पे. अगर अभी तक आप लोगों ने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो जाके हम लोग की जयपुर की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा. At number 15, we have the modern side of Jaipur, which is World Trade Park. It was inaugurated by Shah Rukh Khan in 2012, and it was quite big with 2 towers connected by a bridge. It has a big food court area as well, which has a variety of restaurants offering different cuisines. Apart from the high-end showrooms, this also has an area which felt like we were at an exhibition, and it provided us with interesting products, along with some antique products as well. It was a big mall and we had a good time. At number 14 we have beautiful पन्ना मीना का कुंड. ऐसा लग रहा था यहाँ पे एंटर करने के बाद जैसे हम लोग कोई बॉलीवुड मूवी सेट में घुसे हों, क्योंकि ऐसा कुछ हम लोगों को सिर्फ मूवीज़ में ही दिखा था. तो ये है एक स्टेप वेल जो उस टाइम पे नॉर्मल पीपल यूज़ करते थे. ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था और चारों ओर ये हिल से सराउंडेड था. You will mostly find a Birla temple in almost all of the states in India, and these two didn't disappoint us. It was situated at an elevated hill, and this Birla temple was also surrounded by disciplined gardens, and with the white marble and calm nature, this was a really good visit. At number 12 we have सिसोदिया रानी का बाग. ये काफ़ी खूबसूरत जगह पे बनाया गया पैलेस था जो कि सराउंडेड था डिसिप्लिन गार्डन और हिल के साथ. ये पैलेस राजा सवाई जय सिंह सेकंड ने बनाया था अपनी वाइफ और उदयपुर की प्रिंसेस के लिए. और क्यों सिर्फ उन्होंने इसी रानी के लिए अपना महल बनाया था वो सब जानकारी आपको मिलेगा पूरी वीडियो में. At number 11, we have the Jal Mahal, which is an interesting water palace, as it is built right in the middle of the Mansagar lake. There is nothing much to do there, but still you cannot miss out on this as being covered with the hills as well. It looks surreal and way too beautiful. At top 10 we have food tour of Jaipur. टॉप 16 की लिस्ट पे हमने फूड टूर को भी इंक्लूड रखा इसलिए क्योंकि जयपुर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वहाँ का फूड.
स्पेशली घेवर, कांजी वड़े, कचौड़ीज एक्सेट्रा, जिसके बिना जयपुर ट्रिप अधूरी है। लेकिन आप लोग सिर्फ सोशल मीडिया फेमस प्लेसेस को विजिट ना करके छोटे छोटे स्टॉल्स को भी विजिट कीजिएगा, जहाँ पे आपको जयपुर की ऑथेंटिक टेस्ट भी मिलेगा और इन अ गुड प्राइस। एट नंबर 9 वी हैव बाजार शॉप जयपुर। मार्केट एरिया में से जयपुर की सबसे बड़ी मार्केट है जौहरी बाज़ार और बापू बाज़ार। ये दोनों मार्केट आपको एक ही जगह पे मिलेगा और ये मिडिल ऑफ जयपुर में लोकेटेड है। प्रोडक्ट अलग अलग मिलेगा आपको हर मार्केट पे, जैसे कि जौहरी बाज़ार फेमस है सिल्वर ज्वेलरी और राजस्थानी ऑथेंटिक वेयर के लिए, और बापू बाज़ार फेमस है लेदर बैग, सैंडल, मेंस एंड वुमेन वेयर एक्सेट्रा। At number 8, we have the Albert Hall Museum, and it was a big one. Maybe because it is the oldest museum of the state and also functions as the State Museum of Rajasthan. The whole museum was divided into sections from carpet to cutlery to weapon section to stone artifacts. Then we were directed to the first floor from where we could see the interesting tiles of the ground floor, and this floor too had interesting currencies and stamps from the century to a gifted mummy, and we ended with the musical section. A must visit, and do watch the full video for more interesting facts. At number 7, we have the Hawa Mahal, which can also be considered as one of the landmarks of Jaipur. It is situated right at the heart of the city, in and around Johari Bazaar. These here that you see are the Jharokas, and like this we have shared so many facts about this mahal in our full guide that you will not need a guide when you will visit this palace. But this is a definite must visit and you just cannot miss out on this. It took us more than 2 hours to complete the tour of Hawa Mahal. एट नंबर 6 वी हैव गोविंद देव जी टेम्पल। ये राधा कृष्ण जी की टेम्पल है और जो कि मस्ट विजिट है। इसका स्थापना राजा सवाई जय सिंह सेकंड ने किया था। यहाँ पर आने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई त्यौहार चल रहा है, लेकिन बाद में पता चला इतने भक्तगण हर दिन यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ एक बड़ा एरिया भी बनाया गया है सत्संग करने के लिए। At number 5, we have the Patrika Gate, which might be the best evening spot for Jaipur. But don't just mistake it by thinking of it just as a gate, because it was big, marvelous, with great artwork. In a way, it was very beautiful and it was just amazing. At the back side, there were skating classes happening with people just spending a relaxed time there. We too had a great time. तोरण द्वार, जिसे गेटवे ऑफ राजस्थान भी बोला जाता है, इस गेट को कोई कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि नेकेड आई से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे इस गेट को आसमान में बनाया गया हो, और हम लोग शॉक रह गए इसे देख के, क्योंकि ऐसा कुछ हम लोगों ने अपनी लाइफ पे कभी नहीं देखा। At top 3, we have the very unexplored and beautiful Gaitor Ki Chatriya. This is nothing but a crematorium of Maharajas and of their sons and maybe daughters as well, because they wanted to preserve their memories. It has 3 portions, chatriyas or umbrellas, to preserve the crematorium of 3 important kings, which we have discussed in the full video. In short, it was a peaceful time that we spent there, as we hardly saw any people out there. The carvings, artworks were beautiful, and just do not miss out on this. एट नंबर 2 वी हैव अंबर पैलेस और आमिर पैलेस। ये जयपुर का सबसे इम्पोर्टेंट पैलेस है, क्योंकि सिटी पैलेस मूव होने से पहले सारे राजा महाराजा इसी पैलेस में रहा करते थे, एंड दैट इज़ वाई एवरी कॉर्नर डिस्प्लेज रॉयल्टी। यहाँ पर दीवाने आम से लेके दीवाने खास तक सब कुछ काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया था। जैसे दीवाने खास को शीश महल भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें मिरर वर्क यूज़ किया गया था, और जगह जगह इस महल में 24 कैरेट गोल्ड और प्रीशियस स्टोन का भी यूज़ किया गया है। यहाँ इतने स्टोरीज है, वो सब कुछ जानने के लिए आपको फुल वीडियो देखना ही पड़ेगा। ये पैलेस काफ़ी सुंदर है और यहाँ जोधा अकबर मूवी का भी शूटिंग हुआ था। With drum rolls, at number 1 is the Jaigarh Fort. This fort was built to protect Amir Palace,
during attacks, and this was not only big but huge, and so we had to hire a golf cart. This fort holds tons of interesting stories with so many different points inside it. For example, this that you see is the biggest field cannon in the world. Then we could see Jal Mahal from a distance, and then this fort had an underground water tank which could reserve more than 227,000 liters of water. Then we went to a museum which had weapons that were actually used during the time of attacks or wars. And then we reached the third part of the fort, which had a big courtyard with proper sitting arrangements for the kings and the queens, followed by a bhulbulaya which led us to a picture perfect viewpoint. And somewhere in that bhulbulaya we also found the king and queen's secret dining place, followed by the cannon factory, and then we ended our 3 to 3.5 hours of tour with a drone view of the Amar Palace. Alright, so hope you all have enjoyed the list. And right now we are let's talk about the bonus place that we missed. So उस प्लेस का नाम है चौकीधानी। वो एक्चुअली एक प्रॉपर टूरिस्टी प्लेस है जिसे एक राजस्थान की विलेज के रूप में उन लोगों ने बना के रखा है। तो वहाँ पे एक एंट्री टिकट आपको पहले पे करना होगा, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही होगा। एक्चुअली चौकीधानी ऐसा नहीं है कि हमारे लिस्ट में नहीं था या फिर हम लोग नहीं जा पाते, हम लोगों ने खुद ही उस चीज को नहीं किया क्योंकि रेस्ट लेना हम लोग के लिए ज्यादा ये हो गया था उस टाइम पे, और गर्मी भी बहुत थी जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है। तो नॉर्मली ये है कि चौकीदानी में आप जब एंट्री करोगे वो प्रॉपर राजस्थानी थीम बेस, जहाँ पे आपको राजस्थानी फोक डांस, राजस्थानी थीम बेस इन द सेंस द विलेज लाइफ, द राजस्थान विलेज लाइफ दे हैव शोड। हाँ, तो वहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर राजस्थानी फोक डांस देखने को मिलेगा, प्रॉपर ऑथेंटिक राजस्थानी फूड मिलेगा, वो भी पपेट शो। हाँ, और वो भी आपको बैठ के मतलब आपको खाना है वहाँ पे, वैसा उन लोगों ने डाइनिंग एरिया बना के रखा है। और फिर वहाँ पे आप लोग अगर कुछ एक्टिविटीज करना चाहो, जैसे कि वहाँ पे बोट है, फिर वहाँ पे कुछ सुविनियर्स वगैरह आप लोगों को खरीदना है, वो सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे डेफिनेटली आप लोग, इट्स अ गुड इनिशिएटिव एक्चुअली, इट्स अ गुड सोशल इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट मे बी, सो प्लीज डू विजिट, ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट हो कि राजस्थान की विलेज है कैसे। तो जाना जरूरी है, हम लोगों ने मिस कर दिया, थोड़ी गलती हम लोगों ने भी कर दी इस ट्रिप में। तो भी कोई बात नहीं, आप लोग जाइएगा और बताइएगा, अगर किसी ने भी विजिट किया उस जगह को बताइएगा कैसा लगा। तो भी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड डू वेट फॉर आवर नेक्स्ट वन, विल शो यू द आइटिनरी। लाइक if you have already seen our videos, you will get the itinerary anyway, but we have accumulated all the days and we'll bring out the itinerary for you so that it helps you. हाँ, क्योंकि एक आइटिनरी जब आप ट्रेवल करते हो आपके लिए पॉसिबल नहीं है सारा वीडियोस आप ओपन करके देखो, तो एक आइटिनरी में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा एक ही जगह पे। तो फिर चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको कुछ भी जानना है वीडियो को शेयर कीजिए जिसके साथ आप राजस्थान आने की प्लान कर रहे हो, और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बाय बाय।